الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے بندوں کی ہدایت کے لیے جہاں کتابوں کو نازل فرمایا، وہیں پر انبیاء اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا. بندوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے صرف کتاب نازل کر کے اللہ رب العالمین نے بندوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس کتاب کے اندر جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، جو قوانین ہیں، اس پر تم اپنی سمجھ سے عمل کرو. جس کا عمل ہماری منشا کے مطابق ہوگا، یقینی طور پر اسے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا. اور جس نے ان قوانین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، اس کے سمجھنے کے سلسلے میں چوک کی، اور اس نے جو عمل کیا ہے وہ ہماری منشا کے مطابق اگر نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے، اسے سزا دی جائے گی. اللہ رب العالمین نے ایسا معاملہ ہرگز نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کتابوں کو نازل فرمایا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کو بھی مبعوث فرمایا، تاکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ رب العالمین کی اس کتاب پر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں، اور لوگ انبیاء اور رسولوں کی اتباع کر کے وہ جنت کے مستحق ٹھہریں. قرآن مجید اگر یہ ٹیکسٹ ہے، تھیوری ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پریکٹیکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا. کیسے عمل کرنا ہے، کب عمل کرنا ہے، کس انداز سے عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. قرآن مجید اگر اصل ہے، بنیاد ہے، تو اس بنیاد پر اسلام کی جو خوبصورت عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوتی ہے. ورنہ اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو پھر دین، شریعت یہ نامکمل ہوگا، یہ کمپلیٹ نہیں کہلایا جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس فتنے کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کا کلام کافی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ سراسر گمراہی ہے. جو حدیث کو شرعی طور پر ماخذ، سورس، شریعت کا، قانون کا، اسلام کا نہیں تسلیم کرتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے. وہ دین اسلام سے خارج ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو شریعت کا حصہ نہیں جانتا ہے، نہیں مانتا ہے. ان منکرین حدیث سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا دلیل ہے آخر کہ آپ نے قرآن مجید کو کلام اللہ جو کہا ہے، آخر اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کو کلام اللہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل کیا ہے؟ تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ قرآن مجید ہی اس کی دلیل ہے.
یہ कैसी बात है? कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, ये दावा है, इसके लिए दलील अलग से आपको देनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कुरान मजीद ही दलील है, इसलिए कि जब हम ये कहते हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है शरीयत का हिस्सा है, इसकी दलील क्या है, तो जब हम अहादीस पेश करते हैं तब तो वो कबूल नहीं करते और कहते हैं कि हदीस शरीयत का हिस्सा है, ये आपका दावा है, अगर आपको दलील देना है तो आप कुरान से दीजिए। तो इसी अंदाज से जब कुरान मजीद को आप कलामुल्लाह कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना और मानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको दलील कुरान के अलावा देनी होगी, जिसके लिए आपको किसी न किसी हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही ने कुरान मजीद को कलामुल्लाह है ये कहा है। अगर पूरे कुरान को अगर ये दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं तो सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो कलामुल्लाह है। हमें कैसे पता चला वो कलामुल्लाह है? अवाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये कुरान मजीद जो नाजिल हुआ है या ये पहली वही जो नाजिल हुई है ये अल्लाह का कलाम है, ये लोगों को कैसे पता चला? जब तो कुरान मजीद मुकम्मल नाजिल नहीं हुआ था कि आप ये कहें कि कुरान मजीद ही दलील है कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, तो वहां पर जो है इन्हें मजबूरन इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हमने इस कुरान को कलामुल्लाह माना है, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छोड़कर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को छोड़कर कुरान मजीद को कलामुल्लाह भी ये साबित नहीं कर सकते। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, ये उस वक्त जो है लोगों के सामने बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखी और लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को कबूल किया ये कहकर कि ये आप सबसे सच्चे हैं, आपने कभी झूठ ही नहीं बोला है। अगर हम सिर्फ कुरान मजीद को मानते हैं या मुनकिरीन हदीस जैसे कुरान मजीद को मानते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का उन्हें सामना होता है। बस औक़ात कुरान मजीद के अंदर या आम कलाम के अंदर भी बाज ऐसे अहकाम होते हैं या बाज जो है ऐसा सेंटेंस होता है जिसे आप कहने वाली की मुराद क्या है, मंशा क्या है, जाने बगैर नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर अगर कागज पर कोई सिर्फ ये लिख दे क्या बात है, क्या बात है, सिर्फ ये 3 हुरूफ अगर कोई लिख दे, ये 3 लफ्ज लिख दे क्या बात है, तो जब तक कहने वाले का अंदाज हमें मालूम नहीं होगा, हमें मालूम नहीं होगा कि इस सेंटेंस से क्या मुराद है, क्या पूछना चाह रहे हैं क्या बात है, या ताज्जुब करना चाह रहे हैं कि क्या बात है, या फिर हैरानगी का यहाँ पर इजहार हो रहा है, या फिर गुस्से का इजहार हो रहा है कि क्या बात है, ये कैसे पता चलेगा? तो कहने वाले की जो मुराद है वो उसी वक्त हम समझ सकते हैं जबकि जो है हमें मालूम हो, हमें बताया जाए कि ये जो सेंटेंस है या फिर ये जो आयत है इसका पस मंजर ये है, अल्लाह ताला की मुराद ये है, अल्लाह ताला इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं। तो यही मामला जो है कुरान मजीद का है। अल्लाह ताला इन आयतों पर कैसे अमल करना है उस वक्त तक हम ये नहीं समझ सकते जब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये नहीं बताया कि इससे अल्लाह ताला की मुराद क्या है, अल्लाह ताला की मंशा क्या है। वरना मामला ये होगा कि सामने वाला जैसा समझेगा फिर वो वैसे ही अमल करेगा, हालांकि अजर और सवाब अल्लाह ताला अपने कवानीन या अपने अहकाम के हिसाब से देगा। अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक सजा व जजा का मामला होगा, बंदों की मंशा के ऊपर ये नहीं रखा गया है। तो कुरान मजीद को समझने के लिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जरूरी है, इसके बगैर हम कुरान मजीद को नहीं समझ सकते। जिस तरह हम जो है आम अल्फाज को भी या आम जो है जुमलों को भी, चाहे वो उर्दू की ही क्यों ना हो, अगर उसका सियाक सिबाक नहीं है या कहने वाले की मुराद क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, जब तक हमें मालूम हो नहीं होगा हम उसे जो है नहीं समझ सकेंगे। जो मुनकिरीन हदीस है उनके बहुत सारे शुबहात है
اور اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ جو ان کے سارے جو اعتراضات ہیں حدیث پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہونے پر، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دراصل مستشرقین کی باتوں کو یہ لوگ اپنے الفاظ سے ادا کرتے ہیں۔ مستشرقین یہ دراصل یورپین کنٹریز کے یا پھر جو ہے ویسٹرن کنٹریز کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھنے کے لیے، اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، جنہوں نے عربی سیکھی باقاعدہ طور پر، قرآن مجید پڑھا، سیرت کو پڑھا، احادیث کو پڑھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ اعتراض کیا جائے، اسلام پر اعتراض کیا جائے، ہاں رسول اسلام پر اعتراض کیا جائے، اللہ کے کلام پر اعتراض کیا جائے، قرآن کو شریعت نہ ثابت کیا جائے، حدیث رسول کی اہمیت کو گھٹا دی جائے۔ اس مقصد سے وہ عربی کو انہوں نے پڑھا اور باقاعدہ طور پر ریسرچ کر اپنے اعتبار سے ان لوگوں نے یہ ساری باتیں، یہ سارے اعتراضات پیش کیے۔ اب یہ جو منکرین حدیث ہے اپنے الفاظ میں انہی کے اعتراض کو لے کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے اعتراضوں میں سے ایک بنیادی اور اہم اعتراض یہ ہے کہ حدیث دراصل 200 سال بعد جو ہے مدون ہوئی، حدیث کی جو کتابیں ہیں 200 سال بعد، 2 صدیوں کے بعد گویا کہ وجود میں آئی، تو لہٰذا اگر حدیث جو ہے شریعت کا حصہ ہوتا تو اتنے 200 سال حدیثیں کہاں غائب تھیں؟ اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو جس طرح قرآن مجید ایک مصحف میں جمع ہو چکا تھا، اسی انداز سے حدیثیں بھی لکھ دی جانی چاہیے تھی، حدیثیں بھی جمع ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ مستشرقین کا ایک اعتراض ہے جسے جو ہے یہ منکرین حدیث بھی لے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور کہتے ہیں حدیث تو امام بخاری نے جمع کیا ہے نا، حدیث تو کتب ستہ کے ائمہ نے جمع کیا ہے، امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، ان لوگوں نے حدیثوں کی کتابوں کو جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیثیں گویا کہ موجود ہی نہیں تھی، حدیثیں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ ان کا یہ جو اعتراض ہے یہ بڑا کھوکھلا ہے۔ اور جب ان منکرین حدیث سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں تاریخ دلیل ہے، کہتے ہیں تاریخ دلیل ہے، تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ 200 سال بعد ہی کتابیں لکھی گئی۔ تو تاریخ، ہسٹری، جس کو لکھنے والے جس کے بیان کرنے والوں کے پاس کوئی خاص معیار بھی نہیں تھا، ان لوگوں کی بات کو تسلیم کر لیا جا رہا ہے۔ محدثین جنہوں نے احادیث کو کھنگالا ہے، انہیں پرکھا ہے، اور جتنے روات موجود ہیں احادیث کو بیان کرنے کے سلسلے میں، ان تمام کی زندگی کو بھی پڑھا ہے، پرکھا ہے، اور ان کے اوپر حکم لگایا ہے، ان کی بات کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یعنی ایک معیار یہ ہے کہ ہسٹری میں یہ بات آ گئی، ہم جو ہے قبول کر لیے۔ تو جب ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر جب محدثین کی خدمات کو ذکر کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں پر محدثین کی خدمات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ان کا دو رخا پن ہے، یہ جو ہے اپنے لیے جو دلیل، جو چیز بن جاتی ہے اسے وہ پیش کر دیتے ہیں، اور وہی اگر مخالف لوگوں کے لیے وہ چیز دلیل بنتی ہے تو وہ بالکل جو ہے اپنا دامن جھٹک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جو ہے دلیل نہیں بن سکتی۔ تو آپ تو دلیل بنائے نا، جب آپ اس چیز کو دلیل بنا رہے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو دلیل کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو ان کا یہ اعتراض ہے کہ حدیثیں جو ہے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئی۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے پہلے آ گئی تھی، مزید کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اس کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ ہاں اس زمانے میں پڑھنے لکھنے والے بہت زیادہ موجود نہیں تھے، اس کے باوجود جو صحابہ کرام، جو حضرات لکھ سکتے تھے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ علماء نے باقاعدہ طور پر ان صحابہ کی فہرست کو جمع کیا اور بتایا 50 سے زائد ایسے صحابہ ہیں، سبحان اللہ، ایک دو نہیں، 50 سے زائد ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر حدیث کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ دی ہے۔
तो सहाबा से हदीसों का लिखा जाना ये साबित है। अबू दाऊद की हदीस इससे पहले भी पेश की गई थी। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले, 5000 से जायद हदीसें रिवायत करने वाले। आगे बात आएगी इंशाअल्लाह अगर मौका मिले तो। सबसे ज्यादा जो एतराज़ात ये मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट जो करते हैं वो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात पर कहते हैं, और इन्हीं से मुतासिर बाज नादान मुसलमान भी इनके ऊपर जो है एतराज कर देते हैं कि आखिर ये छठी हिजरी में जब वो इस्लाम कबूल किए हैं, 6 हिजरी में, हिजरत के 6 साल बाद जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मुश्किल से 4 या 5 साल उन्हें मिले हैं, लेकिन इतनी अहादीस कैसे जमा कर सकते हैं? ये एतराज जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हुआ है, और उसका जवाब भी उन्होंने उसी वक्त दे दिया है जो बुखारी वगैरह के अंदर जिक्र हमें उसका मिलता है, जो हम वहां पर करेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मुझसे ज्यादा हदीसें मेरे साथ जो है अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास थी। हाँ, अलबत्ता मैं हदीसों को याद रखता था। वो हदीसों को लिख लिया करते थे, मैं हदीसों को याद कर लिया करता था। तो यहाँ पर एक बात ये भी वाज़ेह हुई कि हदीसों का ना लिखा जाना हदीसें महफूज नहीं है नहीं कह सकते, इसलिए कि सहाबा कराम का हाफिज ऐसा था, अरब का हाफिज ऐसा था जो ज़रबुल मसल था, जिसकी मिसाल बयान की जाती थी, जो अपने घोड़ों के नस्ब को तक याद रखते थे, अपने नस्ब को नहीं, घोड़ों के, उनके पास जो घोड़े थे उनके नस्ब नामे को तो वो तक जो है वो याद रखते थे। तो अहादीस तो उनके लिए याद रखना आसान है। 100 अशआर पर मुश्तमिल जो कसीदे हुआ करते थे वो उन्हें ज़बानी याद होते थे, लिखने पढ़ने वाले बहुत कम जो है लोग पाए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी सहाबा कराम ने लिखा। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गवाही दी। अबू दाऊद की हदीस के अंदर आता है कि एक मरतबा अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बातें सुनते थे वो लिख लिया करते थे, उन्हें लिखना आता था। माशाअल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बात सुनी वो उन्होंने लिख ली। बाज़ दफा बाकायदा दीगर हदीस के अंदर आया है, उन्होंने पूछ कर लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीजें मैं लिख लेना चाहता हूं, क्या इजाजत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाजत दी और वो लिख लिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात गौर की कि कुछ दिनों से हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसें लिख नहीं रहे हैं। जब इनसे जो है ये बात पूछी गई कि आखिर आप हदीसें क्यों नहीं लिख रहे हैं, पहले हदीसें लिखते थे फिर क्यों रख गए, उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल कुरैश ने मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में भी कभी होते हैं, बहालत गज़ब बात करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुशी में होते हैं तब भी बात करते हैं। तो आमतौर पर गुस्से में और खुशी के आलम में इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, बहुत सारी ऐसी बातें बयान कर देता है जो कि बोलना नहीं चाहिए। तो लिहाजा तुम्हें चाहिए कि तुम हर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मत लिखो। ये सुनना था कि उन्हें थोड़ा सा ये बात जो है खटकी, तो लिहाजा वो रुक गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सबब मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उक्तुब, तुम जरूर लिखो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया अपनी जबान की तरफ, अपने मुंह की तरफ, कहा इस जबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलता। गुस्से के आलम में हो या खुशी के आलम में हो या किसी भी हालत में हो, जंग की हालत में हो यानी पुरसुकून हालत में हो, हर एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जब भी कोई बात निकलेगी वो हक होगी, उसे तुम लिख लिया करो। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाकायदा तौर पर इसे लिख लिया करते थे, और जो सहीफा इनके पास लिखा हुआ था, जो दफ्तर, जो रजिस्टर हदीसों का इनके पास था, उसे सहीफे सादिका वो कहते थे। इसका नाम उन्होंने दिया, यह सहीफे सादिका है। जब जो है
मुजाहिद रहमहुल्लाह ताबिई आपके रूम में गए थे और जब आपसे मुलाकात हुई देखा कि वहां पर एक संदूक रखे हुआ है, संदूक के अंदर ये दफ्तर रखा हुआ। पूछा कि ये कौन सा दफ्तर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने कहा यह सहीफा सादिका है, इसके अंदर मैंने उन अहादीस को लिखा है जिन्हें मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुना है, जिन्हें मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सुना है, वो हदीसों को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इनका ये जो सहीफा है वो बहुत ही ज्यादा मशहूर है और इस सिलसिले में बहुत सारी रिवायतें हमारे पास जो है आती हैं, हमें मिलती हैं। इसी तरह हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हदीसों को लिखा करते थे और हदीसों को लिखकर सहाबा किराम के पास भेजा करते थे। हमें इस बात का सबूत मिलता है, बुखारी के हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब मुझे बहरैन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा तो उन्होंने बाअतहु मुसद्दिक़न वकतब लहु किताबन फीही फराइद सदक़ती व अलैहि खातिमतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने वो बातें भी इन्हें लिखकर इनके साथ भेज दी जिसके अंदर सदक़े के अहकाम थे और उस खत पर या उन अहादीस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर भी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो बाकायदा तौर पर वो मोहर भी उस पर जो है सब्त थी, वो मोहर भी उस पर लगी हुई थी। उमूमी तौर पर जो हुक्काम होते थे उनका एक अहम जिम्मेदारी ये होती थी कि जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा कि उन्हें ज़कात जो है कलेक्ट करना है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, कि ये इनके मालदारों से ली जाएगी और इन्हीं के फ़ुक़रा में ये तक़सीम की जाएगी। ये जिम्मेदारी थी हुक्काम की। तो लिहाजा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे अहकाम सदक़े के ताल्लुक से तवील हदीस है वो अहकाम बाकायदा तौर पर अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखे और उनके साथ भेजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और खुतबे के अंदर मक्का की फजीलत बताते हुए कहा मक्का ऐसा शहर है कि यहाँ के जानवरों को शिकार नहीं किया जा सकता, हुदूद हरम के अंदर यहाँ के जानवरों को शिकार नहीं किया जा सकता, यहाँ के दरख्तों को काटा नहीं जा सकता। इस मौके पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ख़िर घास की इजाजत दीजिए, झाड़ों को दरख्तों को हम उखेड़ नहीं सकते। तो घास के ताल्लुक से जहां पर मसला है तो इज़ख़िर जो घास है ये हम जो है दफन करते वक्त जो है इस्तेमाल करते हैं, कब्र में जब हम जो है तदफीन करते हैं तो मिट्टी जो है मैयत के ऊपर गिर ना जाए, तो लिहाजा हम जो है ये घास इस्तेमाल करते हैं आड़ के तौर पर, आप लिहाजा हमें इसकी इजाजत दीजिए। और भी बहुत सारे हमारे इस्तेमाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। मालूम क्या हुआ, एक चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी, सहाबा कराम ने उसके ताल्लुक से रुखसत तलब की कि ये चीजें हराम है, हमें इस बात की इजाजत दीजिए, कम से कम इसे हमारे लिए हलाल कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तस्लीम किया और कहा कि हाँ ठीक है, इज़ख़िर घास उखाड़ी जा सकती है इसलिए कि ये हमारे इस्तेमाल में आती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरीजा भी था, फरीज़े मनसबी भी था कि आप लोगों के लिए युहिल्लु लहू हलाला, कि अल्लाह ताला की हलाल चीजों को वाज़े करते थे और हराम चीजों को भी वाज़े करते थे। उस मौके पर जब ये खुतबा दे रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी थे जो यमन से आए हुए थे, उनका नाम था अबू शाह। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप लिख दीजिए। रावी हदीस कहते हैं जो रुवात इस हदीस के, वो आपस में सिर्फ हदीस नहीं लेते थे, हदीस का फहम भी लेते थे। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए लिख दीजिए, तो क्या लिखना मुराद था? एक रावी हदीस को यह बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने इससे पहले जो रावी हैं हजरत औज़ाई, ये वलीद बिन मुस्लिम ने सवाल किया हजरत औज़ाई से और कहा उक्तबू का जो नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उससे आखिर क्या मुराद था, क्या लिखना मुराद था? उन्होंने कहा कि इससे मुराद था कि मा समिअ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुतबतिह, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो खुतबा था ना, इसे लिख दिया गया और उन्हें दे दिया गया जो वो लेकर यमन गए, जो वो लेकर यमन गए। तो मालूम यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाकायदा तौर पर हदीसें लिखी जाती थी। बल्कि मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म हमें मिलता है, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, के लिखने के जरिए इल्म को महफूज कर लो। इल्म दो तरीके से महफूज रहता है, बहुत सारी चीजों से महफूज होता है। एक तो ये कि इंसान जो है याद रखे, इससे भी इल्म महफूज होता है। दूसरा इल्म जो महफूज हो जाता है वो लिखने के जरिए से है, वो लिखने के जरिए से है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इल्म को महफूज कर लो लिखने के जरिए। इसी तरह मौजूद हाज़रीन, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी एक सहीफा था, एक सहीफा था जिसके अंदर दियत के अहकाम और कैदियों को आजाद करने के ताल्लुक से बयान मौजूद था। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अबू जुहैफा रहमहुल्लाह ने सवाल किया। लोगों का बाज़ रवाफिज़ का ये एतराज़ था, उनका ये कहना था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुरान का वो हिस्सा है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। हाँ, जैसा आज बहुत सारे शियों का एतराज़ है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पास कुरान का वो हिस्सा था जो सहाबा कराम के पास मौजूद नहीं था। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये सवाल कर दिया गया, सही बुखारी के अंदर मौजूद है, उनसे सवाल किया गया कि आखिर आपके पास क्या है, आपके पास क्या है? क्या कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अहकामात, कुछ खास वसीयतें, कुरान मजीद की कुछ खास आयतें क्या आपके पास लिखी हुई हैं? उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि अल्लाह का कलाम जो तमाम लोगों के पास जो मौजूद है वही हमारे पास मौजूद है। दूसरा फहम अल्लाह ताला के उस कलाम का माना व मतलब क्या है उससे जो है हम समझते हैं। और तीसरी चीज, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत के ताल्लुक से जो अहकाम बताए कि अगर कोई किसी का कत्ल कर दे, अगर उससे किसास नहीं लिया जा रहा है, उसे माफ कर दिया जा रहा है, तो दियत जो देना रहता है कंपनसेशन के तौर पर, उसके अहकाम हमारे इस सहीफे में लिखे हुए हैं। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी ऐसा सहीफा बाकायदा तौर पर मौजूद था। इसी तरह मौजूद हाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी ऐसा सहीफा था जिसके अंदर कुछ अहादीस उन्होंने लिख कर भी लिख करके रखी थी, जिसे सहीफा सहीहा कहा जाता है, उसका नाम सहीफा सहीहा कहा जाता है। और इसके जो रावी थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन अहादीस को जो लिखा था वो वहाब बिन मुनब्बह रहमहुल्लाह ने लिखा था, ताबी है। इन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इन हदीसों को इस सहीफे के अंदर वो लिख रखे थे। और ये सहीफा आप जानते हैं आज भी इसके चंद नुस्खे बर्लिन की जो है कुतुब खानों के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जिसे डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर उसका तर्जमा किया और लोगों के सामने पेश किया। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमहुल्लाह चंद साल कबल जो है उनका इंतकाल हुआ है। तो बिल्कुल 40-50 साल पहले की बात है कि उन्हें यह नुस्खा मिला और उन्होंने इसका तर्जमा करके लोगों के सामने पेश किया। अब लोगों ने क्या किया, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीसें हमारे पास अब आई हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले भी बहुत सारी हदीसें हमारे पास हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूद है जो दूसरी किताबों के अंदर है, चाहे बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर हो या मुस्नद अहमद के अंदर पूरा एक साथ जमा है। लोगों ने इन दोनों को टैली किया, क्या आखिर देखें कि क्या हदीसें मुख्तलिफ है या फिर वही हैं। लोगों ने इस बात की गवाही दी कि जो हदीसें बुखारी मुस्लिम मुस्नद अहमद के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मौजूद हैं, बिल्कुल वही हदीसें इस सहीफे सहीहा के अंदर भी मौजूद है। ये सबसे बड़ी दलील है कि हदीसें सुभान अल्लाह आज भी उसी अंदाज से महफूज है जिस तरह सहाबा के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
महफूज रहा करती थी। इसी तरह बहुत सारे सहाबा आपस में एक दूसरे को हदीसें लिखकर भेजा करते थे। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आमिर बिन साद बिन अबी वक्कास को हदीसें लिख करके भेजी। उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान बिन हकम रहिमहुल्लाह को हदीसें लिख कर भेजी। ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाकायदा तौर पर हदीसें लिख करके भेजी। अगर हम ताबीन के दौर में आए तो ताबीन के दौर में हदीसें लिखने का रिवाज मजीद वसी हो गया। मजीद जो है लोग अहादीस लिखना शुरू कर दिए। बल्कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के जो वालिद थे अब्दुल अजीज बिन मरवान, इनके ताल्लुक से आता है कि इन्होंने कसीर बिन मुर्रा जो ताबी हैं और जो शाम में थे, सीरिया में थे, हिम्स में थे, और उसे शायद इंग्लिश में हिम्स कहा जाता है। हिम्स में, सीरिया के अंदर, शाम में जहां पर मौजूद थे वो, वहां पर 70 बदरी सहाबा थे। जंग बदर में जो सहाबा शरीक हुए 70 वो सहाबा हिम्स के अंदर मौजूद थे। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के वालिद अब्दुल अजीज बिन मरवान ने कसीर बिन मुर्रा को खत लिखा और कहा कि देखो वहां पर बदरी सहाबा मौजूद हैं, बदरी सहाबा 70 मौजूद हैं, इनसे जो अहादीस तुम्हें मिल सकती हैं उन्हें तुम लिखो, नोट करो और हम तक पहुंचाओ। हाँ, अलबत्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीसें मत दीजिए, इसलिए कि वो हदीसें हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा जो दीगर सहाबा की हदीसें हैं वो आप उनसे सुनिए, लिखिए और हम तक भेजिए। अलबत्ता ये तारीख के अंदर ये उनका जो हुक्म था वो तो हमें मिलता है, लेकिन क्या उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखकर किताब की शक्ल में भेजा है, उसके ताल्लुक से हमें जो है वो नुस्खा नहीं मिला, उसका जिक्र जो है मुहद्दिसीन ने नहीं किया। अलबत्ता उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर अबू बकर रहमहुल्लाह को हुक्म दिया था ये कि वो खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिखें। अबू बकर इब्न हज़म को बाकायदा तौर पर यह हुक्म दिया था। वो क्या कहते हैं सुनिए, वो कहते हैं कतब उमर बिन अब्दुल अजीज इला अबी बकर इब्न हज़म, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जब खलीफा बने, ये कब की बात है? 99 हिजरी की बात है। 99 शायद उनका जो इंतकाल है 101 में हो गया था, 101 हिजरी में उनका इंतकाल हो गया था। तो जब वो खलीफा बने तो उन्होंने अबू बकर बिन हज़म रहमहुल्लाह जो वक्त के बड़े आलिम थे उनसे उन्होंने कहा, उन्जुरु मा काना मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक्तुबहु, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं ना उसके ताल्लुक से छानबीन करो और उसे लिखो। फ़इन्नी ख़िफ़्तु दुरूसल इल्मी व ज़हाबल उलमा, इसलिए कि मुझे इस बात का खौफ है कि इल्म जो है छुप जाएगा, उलमा इस दुनिया से गुजर जाएंगे और इल्म जो है मिट जाएगा, छुप जाएगा। और कहा वला तक़बल इल्ला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखो सिर्फ और सिर्फ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही लिखना। वल तुफ़शुल इल्म, लोगों को चाहिए कि वो इल्म को फैलाएं। वल तजलिसु हत्ता युअल्लमा मन ला यअलम, और बाकायदा तौर पर मजलिसें कायम करो और वो लोग जो जानते नहीं हैं उन्हें सिखाओ, उन्हें पढ़ाओ, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बतलाओ। फ़इन्नल इल्मा ला यहलक हत्ता यकूना सिर्रन, इल्म उस वक्त हलाक हो जाता है, खत्म हो जाता है जब इल्म छुपा लिया जाता है, तो इल्म खत्म हो जाता है। ये हुक्म उन्होंने बाकायदा तौर पर लिख कर भेजा, जिस पर अबू बकर इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर एक दफ्तर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया था। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह को भी हुक्म दिया था हदीसों को जमा करने का। वो कहते हैं अमराना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बिजमइ सुनन, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि हम सुन्नतों को जमा करें, हदीसों को जमा करें। फकतबनाहा दफ्तरा, हमने हदीसों को दफ्तरों में जमा किया, बाकायदा तौर पर बुक्स में, कापियों में हमने हदीसों को लिखा, हदीसों को जमा किया। फबाअसा इला कुल्ली अर्दिन लहू अलैहा सुल्तानुन दफ्तरन, चुनांचे जब
जब हमने किताबों के अंदर लिख कर इन्हें जब दिया तो जहां जहां इनकी हुकूमत थी वहां वहां इन्होंने इन किताबों को भेजा, हदीस की इन किताबों को उन्होंने वहां वहां भेजा। तो हमें मालूम यह होता है कि ताबईन के ज़माने में भी बाकायदा तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिख लिया गया। इसीलिए उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कहा अव्वलु मन दव्वन, सबसे पहले जिन्होंने हदीस को किताब की शक्ल में जमा जो किया है वो इमाम ज़ुहरी है। वो इसलिए कि मुख्तलिफ अबवाब की हदीसों को एक साथ जमा कर दिया, वरना सहाबा के पास जो हदीसें थी बहुत कम हदीस सहाबा के पास थी, किसी के पास कुछ हदीसें, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, लेकिन एक साथ एक किताब में जो हदीसें जमा हुई वो ताबईन के जमाने में हुई और उसके बाद माशाअल्लाह से ये सिलसिला चल पड़ा। और उसके बाद हम तो जानते हैं, बल्कि सारे लोग जो है इस बात को तस्लीम करते हैं कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस शक्ल में हमारे पास मौजूद है उस शक्ल में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह वगैरह वगैरह के जमाने में या इमाम आइम्मा के जमाने में जो है ये पूरी हदीसें लिखी गई। इन लोगों का एक एतराज है जो मैं आपके सामने मुख्तसरन बयान करके अपने इस दर्स को हम जो है खत्म करेंगे। वो ये है कि एक हदीस हमें मिलती है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हदीसों को लिखने से। कहा, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तक्तुबू अन्नी गैरल कुरान, कुरान के अलावा कुछ भी तुम मत लिखो, जिसने कुरान के अलावा कुछ भी लिखा उसे मिटा दे, उसे वो मिटा दे। ये हदीस सही मुस्लिम की है। इस हदीस को कौन पेश कर रहे हैं? इस हदीस को मुनकिरीन हदीस पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस रसूल लिखने से मना फरमाया है। अब यहां पर क्या इनके लिए ये चीज दलील बन सकती है? क्या इनके लिए क्यों नहीं बन सकती जी? हदीस से कैसे आप दलील ले रहे हैं? तो समझ आप, इनका जो रवैया है ना, इनकी जो बात है, जहां पर इनके लिए जो है दलीलें मिलती हैं, जो दलीलें इनके लिए थोड़ा सही नजर आती हैं, इनके मौकिफ की जो, इनके मौकिफ को जो सही बताती है, इनके मुगालते को, इनके शुबहात को, एतराजात को सही बताती है, वो सारी दलीलों को ये लेते हैं, हत्ता कि ये हदीस भी जो है पेश करते हैं। तो हदीसों को जब आप मानते नहीं तो इस हदीस को आप पेश ही नहीं करना, लेकिन उसके बाद जो पेश अगर करते हैं, मुहद्दिसीन ने इसके जो है इसके ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात बयान की और कहा शुरुआत के जमाने में बाज़ सहाबा कराम कुरान मजीद को भी और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही मुसहफ के अंदर लिख रहे थे, एक ही पेपर के अंदर लिख रहे थे। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, ऐसा अगर आप लिखेंगे तो कुरान मजीद क्या है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आपको मालूम नहीं होगा। अगर आपको मालूम है, बाद में जिन तक वो चीज पहुंचेगी तो फिर वो खलत मलत हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा अल्लाह ताला के कलाम को अलग रखो और मेरी जो हदीस है उसे अलग रखो, ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसका एक और एक माना है, इसकी एक और एक तौजीह ये बयान की जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मना किया था वो इसलिए मना किया था कि बाज़ सहाबा कराम लिखने के माने में उतने ज्यादा वो अच्छे नहीं थे, लिहाजा चंद सहाबा कराम को इसके ताल्लुक से मना किया गया था। और उसी तरह ये भी जो है बात आती है कि ये जो हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये मनसूख है उन अहादीस से जिसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखने का हमें हुक्म मिलता है। कितने हदीस हमने पेश की? मुख्तसरन तौर पर हमने बहुत सारी हदीस, कम से कम 4 से 5 हदीसें मैंने आपके सामने पेश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सहाबा कराम बाकायदा तौर पर लिखा करते थे। तो वो जो हुक्म था नहीं लिखने का वो इब्तिदाई दौर में था, जो कि मनसूख हो गया। बाद में जो हुक्म साबित है, जो बाकी रह गया, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लिखने का ही है। इसी तरह मौजूद हाज़रीन, एक बुनियादी जो एतराज़ात वो लोग पेश करते हैं, शुबा जो पेश करते हैं, वो ये है कि हदीसें खलक मलत हो गई, हदीसें सही भी है, ज़ईफ भी है, लिहाजा इसीलिए हम हदीसों को नहीं मानते। ये बिल्कुल बड़ी ही भद्दी बात है। ये ऐसी बात है कि एक आदमी के पास खजाना है, माल है, दौलत है, अलबत्ता उस माल के अंदर कुछ नकली नोट आ गए हैं, कुछ नकली सिक्के आ गए हैं, कुछ नकली नोट उसके पास मौजूद हैं। तो क्या ये आदमी पूरे ही खजाने को ले जाकर फेंक देगा? नहीं, वो क्या करेगा, सही को
जो खोटे सिक्के हैं अलग करेगा, असली नोटों को नकली नोटों से वो अलग करेगा। और यही काम मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह अजमाइन ने किया। और इनकी जो खिदमात है, सहाबा कराम भी हदीसों को लेने में जो तसब्बुत से काम लेते थे, 1 से 2 मरतबा जो तसब्बुत से काम लेते थे, और बाकायदा तौर पर जो एक मानों में हदीसें जो ली जा रही हैं उसके ताल्लुक से वो दोबारा चेक जो कर लेते थे, इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से मजीद आगे बातें आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद की तालीमात पर जिस तरह हम अमल पैरा होते हैं उसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जो एतराज़ात, जो शुबहात इस तरह के गुमराह लोग पैदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम शुबहात से, एतराज़ात से हमारी हिफाजत फरमाए और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने के हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।